May I come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Please sit down. तनु, Yes, sir. आपने LLB कब किया? So, in the year 2020, 2020. And after that? so I have been preparing for the services, Bihar Judicial. Okay. इससे पहले कहीं इंटरव्यू दिया आपने या मेंस? Yes, sir. This is my second interview for the Bihar Judicial Services. Okay, okay. Tanu, please tell me what is the difference between Section 145 Indian Evidence Act Yes, sir. and 157 of Indian Evidence Act. Sir, 145 talks about contradiction and 157 about the corroboration. By applying section 145, a previous statement in writing of a person or a accused is corroborated before the court, by which its truth and falsity is being checked. However, under section 157, ठीक है. What is relevant fact, Tanu? relevant fact are those facts which are admissible before the court. Sir, can I take a moment? Sir, relevant facts are those facts which can be made admissible before the court of law in with regard to any issues. नहीं, ये तो गलत बता रही हैं आप. इससे अच्छा बता देती. Relevant fact are those facts which are given under section 6 to 55. 6 to 55, yes, sir. Every relevant fact is not admissible. Admissible, yes, sir. ओके, चलिए मुझे एक और सवाल बताइए. पावर टू आस्क क्वेश्चन ऑफ द मैजिस्ट्रेट इज गिवन इन इंडियन एविडेंस एक्ट. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. तो व्हाट आर द लिमिटेशंस? बीइंग ए जज, you can put any questions to the any party or the witness at any time, whether the question is relevant, irrelevant, but there are certain limitations. Sir, can I take a moment for... मैं सेक्शन बता देता हूँ. सेक्शन 165. Sorry, sir. कोई बात नहीं, छोड़िए. BS से पढ़ा आपने? Sir? BS से. Sir, I am not very through the act. अच्छा, ठीक है सर, प्लीज. अभी सर बात करते हैं BSc की. Yes, sir. कोई दो चेंजेस बताइए जो इंडियन एविडेंस एक्ट्स में आपको देखने को नहीं मिलते हैं. Sir, in the BSc, mainly the changes has been regarding the admissibility of the electronic evidence. It has been made more elaborate, and the importance of hash value has been included in that. इसका एक्ट नंबर बताइए BSc का. एक्ट नंबर. Sir, I'm sorry, sir. I'm Okay, there are three general rules in Indian Evidence Act 1872, and one is best evidence should be given in all the cases. Is there any exception in Indian Evidence Act to this general rule? Sir, the exception is hearsay evidence is admissible. My question is best evidence should be given. Is there any exception? Sir, I'm sorry, sir. I'm not able. Okay, what is leading question? So, leading questions are those questions which the person putting it expect the answer to be given is the leading question. Okay, and whether they may be asked in examination chief or re-examination. So, leading question are generally asked in cross-examination. Okay, who may testify? Any person may testify who is capable of understanding the questions put before them. What is privileged communication? So, privileged communication are there are various natures of privileged communication. Those communication which the person is communicated between two person, and the person is not obligated to communicate it before. यदि आप एक मजिस्ट्रेट हैं और आप जिस समय एक प्रिजाइडिंग मजिस्ट्रेट हैं और उस समय आपके कंडक्ट के बारे में यदि कोई कोर्ट आपको आपके कंडक्ट के बारे में कुछ बताने के लिए कंपेल कर सकती है. जिस समय आप प्रिजाइडिंग है मजिस्ट्रेट के रूप में कोर्ट में बैठे हैं उस समय आपका खुद का कंडक्ट जो भी रहा हो उसके बारे में क्या कोर्ट कंपेल कर सकती है आपको बताने के लिए, एविडेंस देने के लिए? Sir, it can the court can not. So, can I take a moment? Don't think. Sir, as much I am able to recall, if any incident is happening in the court, in my court during the proceeding, then as a witness, the presiding officer can be produced before another court. Okay.
तनु ये बताइए रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है? सर सर रेफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी बेसिकली दो तरह की है, एक पास्ट रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी है और एक प्रेजेंट का है। इसकी ज़रूरत ये है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंसिडेंट बहुत ही दिनों का हो चुका होता है, फिर जब विटनेसेस प्रोड्यूस होते हैं कोर्ट के सामने में, तो उन्हें शायद याद ना हो कि एग्जैक्ट क्या क्या हुआ था। तो उन केसेस में कुछ विटनेसेस को रिकॉर्ड या केस डायरी रेफ़र करने के लिए। ओके, पोस्टमार्टम की ज़रूरत क्यों होती है? सर पोस्टमार्टम की ज़रूरत एग्जैक्ट इंसिडेंट एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए होती है कि कब इंसिडेंट हुआ है या किन कारणों से हुआ है, किन हथियारों को या किस चीज़ों को यूज़ करके हुआ है। ओके, एक विसरा रिपोर्ट होती है, आइडिया है आपको इसका? सुना है बट बहुत अच्छे से आइडिया। कोई बात नहीं। ये बताइए कि हिंदू लॉ में मैरिज के रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। ये सर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? सर ऐसे तो कोई कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, तो कॉन्सिक्वेंसेस उन्हीं केसेस में होंगे जब कोई डिस्प्यूट होता है जहाँ पे वैलिडिटी ऑफ मैरिज क्वेश्चन होती है कि वेदर मैरिज सोलोमनाइज हुआ है कि नहीं पार्टीज के बीच। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो लॉज होते हैं उसको कौन फॉर्मुलेट करता है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर? सर मैं श्योर नहीं हूँ इसका, बट अगर आप परमिट करेंगे तो मैं आंसर देना चाहूँगी। बताइए। सर शायद ये स्टेट कंकरेंट लिस्ट नहीं, सर आई एम सॉरी चलिए, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? सर द कंकरेंट लिस्ट आर द लिस्ट ऑन विच द पार्लियामेंट एंड द स्टेट बोथ कैन लेजिस्लेट। और अगर मान लीजिए दोनों के दोनों कानून बनाते हैं तो किसका कानून प्रिवेल करेगा? सर इन दैट केस पार्लियामेंट के कानून प्रिवेल करेगा। कोई सब्जेक्ट मैटर बता सकती हैं जो कंकरेंट लिस्ट की कैटेगरी में फॉल करते हो? यस सर, आई थिंक सर हेल्थ डिपार्टमेंट। कोई बात नहीं। ये बताइए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए किसी व्यक्ति के पास? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, हाई कोर्ट में 10 इयर्स मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए और कुछ सर सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। सो तनु ये बताइए प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? सर तो प्रेसिडेंट रूल बेसिकली स्टेट में इम्पोज किए जाते हैं या फिर नेशनल लेवल पे भी इम्पोज की जाती है। नेशनल इमरजेंसी होती है नेशनल लेवल पे। अगर इफ द मैसेंजरी ऑफ द स्टेट इज़ नॉट एबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इन दैट केस। बिहार में कितनी बार लग चुका है प्रेसिडेंट रूल? सर मुझे याद नहीं है कि कितनी बार लगा है, आई एम सॉरी सर। ये बताइए जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र। यस, सर उसके इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? ओके, आप चंपारण से हैं, ईस्ट चंपारण। यस सर। गांधी जी का नाम हम चंपारण के साथ पढ़ते हैं, सत्याग्रह स्टार्ट। बताइए कुछ। सर चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी से ही स्टार्ट हुआ था। बिहार बेतिया के राजकुमार शुक्ल आए हुए थे, उन्होंने ही गांधी जी को मोतिहारी लेके आया हुआ था। क्या कॉजेस थे? सर इंडिगो फार्मिंग के अगेंस्ट में हुई थी। ओके, PIL क्या होता है? So PIL is a public interest litigation. It is judges oriented or invented litigation wherein a person who is a public spirited raise a issue before the court regarding underprivileged people. सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं Yes sir. वो अपना रिज़ाइन किसे देते हैं? So the president को देते हैं। कन्फर्म Sir? कन्फर्म है आप? No sir. अच्छा बताइए कि 1 साल पहले किसी एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिली है, Yes sir. समझ गए आप मेरी बात? क्या वो भारत में किसी राज्य का गवर्नर बन सकते हैं? 1 साल ही हुआ है उसे बस नागरिकता मिले हुए। सर सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए तो बन सकते हैं, अगर नागरिकता मिल गई है तो। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। प्लीज़ सर।
Apart from the Satyagraha, why the Champaran is famous in present scenario? Apart from Satyagraha. Sir, one kind of for a food, particular kind of food. But किस तरीके का food? Sir, say ahuna meat, I think. Ahuna meat. Okay, thank you. अच्छा, what is the duties of the center towards the state? The center, there are various duties provided in the relations between the center-state relations. And the center is to protect the state from any kind of conflicts. The center can direct the state to obey the rules or to maintain the railways. Center can direct the state to make laws in. Sir, I'm sorry, sir. चलिए, कोई बात नहीं, ये बता दीजिए बस इंडियन एविडेंस एक्ट में इतने चैप्टर हैं, इतने पार्ट्स हैं और इतने सेक्शंस हैं. सर 167 सेक्शंस हैं. ठीक है. चैप्टर याद नहीं है सर, सॉरी सर. 11 चैप्टर्स हैं, 3 पार्ट्स हैं ना. चलिए ठीक, अब आप जा सकते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर. अच्छा ठीक है. एक तो आपने हॉबी जो मेंशन कर रखी है ना, कुकिंग, वाचिंग मूवी सीरीज, लिसनिंग टू स्पिरिचुअल स्पीकर्स. ये नहीं, ये हाँ, मेरे को लगा था एक ये गलत एक रख देना, ठीक है. Yes, sir. अगर वहाँ पूछे कोई एक, उस पर रिसर्च कर लेना. वॉइस आपकी ठीक है, ड्रेस ठीक है, बैठने का तरीका थोड़ा आपका ठीक नहीं था. हाँ मतलब बॉडी इस तरह से एंगल में मुड़ी हुई थी इस साइड में, ठीक है, तो वो स्ट्रेट रखना है. बाल आपके इंटरव्यू में थोड़े आगे आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं. सर ये वो आगे, बन बना लें. हाँ जब भी, ठीक है. थोड़ा सा लास्ट में आप इंटरव्यू को स्लो कर गई हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो बना के रखना है. शुरू में कॉन्फिडेंस आपका ठीक था, लास्ट में डाउन होता चला गया. सर वो क्वेश्चन का आंसर जब जैसे से नहीं दे रहे थे. वही तो चेक करना है बस. बिहार में यही चेक होता है Yes, sir. कि आपको अपने आप को वैसे ही रखना है जैसे बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है. और जितना हो सके प्लीज़ रिवाइज करिए. क्लियर. Yes, sir. और जो कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, इनके आंसर इंस्टेंट आने चाहिए, ठीक है. सर कुछ कहेंगे? ठीक है, बाकी ओवरऑल गुड है, कोई दिक्कत नहीं. सर आपने लीगल नॉलेज में बहुत लैकिंग. वो रिवीजन से सही हो जाएगा. अभी तो जैसे आप महीना अभी भर बैठिए ना, आपको ये पोस्टर देखो, फिर आपका हो गया. हाँ बिल्कुल, यस, ये आदत आप ऐसे ही बैठिएगा. अब तो खैर आप बात करें ऐसे ऐसे, ऐसे रख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. आप जैसे अभी मुड़ गए थे ना इंटरव्यू में, आप ऐसे हो गया था, बॉडी आपकी ऐसे हो गई थी, ठीक है. हरियक डायनेस्टी थी, मगध साम्राज्य था. और क्या नाम है, बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाए हैं आप, ठीक है. उसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न थी आपसे कि सिटीजन मिल गई नागरिकता, तो वो डेफिनेटली इस बाहर के कोई मतलब नहीं, नागरिकता मिल गई तो आप बन जाएंगे. कुछ कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था बस मैं आपको, ठीक है. बाकी हो जाएगा. अभी 1 महीने के करीब आपको मिलने वाला है, तो रिवाइज कीजिए चीज़ों को, ठीक है. और थोड़ा सा इसके बारे में और जितना हो सके प्लीज़ रिवाइज करिए चीज़ों को, ठीक है. चलिए, ऑल द बेस्ट.